Great. The event is live, and Shirley, I am playing the audio. Yeah. Start editing. Show 'em how we do it. When I hit the stage, gonna work the flow. Ain't nobody gonna tell me no. I'm non-stop, I don't drop the beat, no. I'm right on cue, I rise to the top. Well, I got the money and I got the time. Self-made, I'm self-paid, you know. Cause that's who I am and that's how it goes. I own the show and that's how I roll. That's how I roll. Come on. I am who I am, watch me work it, work it, work it. Yes, I am who I am, you can take it, you can leave it. Cause I am who I am, watch me work it, work it, work it. Yes, I am who I am, you can take it, you can leave it. Can't you see? I just wanna be what I wanna be, and I'm gonna have the time of my life. I'll be running this town tonight. Who I am, watch me work it, work it, work it. Yes, I am who I am. I used to think that you diet and you work out and you'll be absolutely fit. But a few months ago, my belief was totally shaken up. So I wanted to up my workout for a new role. But Neelam, my trainer, said that I had to be extremely careful because women over 35 lose bone density because of calcium intake. So calcium intake is extremely important. So I instantly narrated my daily diet too, thinking calcium can't really be a problem for me, right? But she was like, "Pura padega kya?" And I thought, "Phir calcium कैसे पूरा पड़ेगा?" And then she introduced me to Nutrilite, Cal Mag D+, जो calcium intake और absorption दोनों का ख्याल रखता है. So I began supplementing my regular diet with Nutrilite, and I really feel it helps my body in meeting its daily calcium needs. So I choose to plug the nutrition gap with Nutrilite. When are you starting to? Show 'em how we do it. When I hit the stage, gonna work the flow. Ain't nobody gonna tell me no. I'm non-stop, I don't drop the beat, no. I'm right on cue, I rise to the top. Well, I got the money and I got the time. Self-made, I'm self-paid, you know. Cause that's who I am and that's how it goes. I own the show and that's how I roll. That's how I roll. Come on. I am who I am, watch me work it, work it, work it. Yes, I am who I am, you can take it, you can leave it. Cause I am who I am, watch me work it, work it, work it. Yes, I am who I am, you can take it, you can leave it. Can't you see? I just wanna be what I wanna be, and I'm gonna have the time
that you diet and you work out and you'll be absolutely fit. But a few months ago, my belief was totally shaken up. So I wanted to up my workout for a new role. But Neelam, my trainer, said that I had to be extremely careful because women over 35 lose bone density because of calcium intake. So calcium intake is extremely important. So I instantly narrated my daily diet too, thinking calcium can't really be a problem for me, right? But she was like, पूरा पड़ेगा क्या? And I thought, फिर calcium कैसे पूरा पड़ेगा? And then she introduced me to Nutrilite Cal Mag D Plus, जो calcium intake और absorption दोनों का ख्याल रखता है. So I began supplementing my regular diet with Nutrilite, and I really feel it helps my body in meeting its daily calcium needs. So I choose to plug the nutrition gap with Nutrilite. When are you starting to? गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं इस इवेंट में बहुत बड़ा एक स्वागत करती हूँ, और स्वागत करने के लिए मुझे आप सभी लोगों की पहले तो वो प्यारी प्यारी सी जो शक्ल होती है वो मुझे दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपने जो कैमरे को है वो ऑफ रखा है। और आप सभी को पता है कि शर्ली को एनर्जी तभी मिलती है जब आपका मैं वो प्यारा सा जब वो चेहरा जब स्क्रीन के ऊपर में आता है, ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि वो एनर्जी आ जाती है। सो थैंक यू सो मच, आप में से सभी लोगों ने अभी कैमरे को स्विच ऑन कर लिया है, तो थैंक यू सो मच। अब आप में से बहुत सारे लोग बोले कि मैम 900 लोग प्लस हो गए, अभी हमारी टीम काफी बाकी है, तो डोंट वरी एट ऑल। सो हम बहुत जल्द हम आपके साथ में यूट्यूब की लिंक हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, यहाँ चैट बॉक्स में भी आपके साथ में डाल दिया जाएगा। हम लोग पर्सनली भी मैसेज में आप लोगों को पुट अप कर देंगे ग्रुप्स में। आप प्लीज अपनी टीम को आज के इस वंडरफुल इवेंट के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि वो यूट्यूब पे आज के सेशन को देख सकते हैं। Okay? तो सब मुझे ऐसा लगता है कि आज इस इवेंट को लेकर हम सब एक्साइटेड है। हम सब आज यहाँ पर जमा जो आज हम सब लोग जो यहाँ पर हुए हैं, आज हम सब जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए, आज हम सब ये चाहते हैं कि हम देखें कि आज इस इवेंट में क्या होने वाला है। तो जितने लोग एक्साइटेड है सबसे पहले तो वो लोग मुझे दोनों थम्स अप करके दिखा दे। ओके, तो मैं देख सकती हूँ कि सभी लोग एक्साइटेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट एनर्जी। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के मन में ये होगा कि आज इस इवेंट में एक्चुअल में कौन कौन है। अब शर्ली से, मयूर से तो आप लोग हमेशा आप मिलते हैं, है ना, हम लोग हमेशा आपको दिखाई देते हैं, हम लोग हमेशा सेशंस में रहते हैं। लेकिन चलिए आज मैं आपसे उन लोगों से भी आज मैं आपको मिलाना चाहूंगी जो कि आज इस इवेंट में, है ना, जो आज जो बिल्कुल जो खास जो शख्स है, वो कौन से ऐसे शख्स है जो आज आपके साथ में यहाँ पर बात करेंगे एंड आज आपको वो अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस आज वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हम सब मिलने के लिए तैयार हैं उन लोगों से? यस, ओके। सो चलिए, तो मैं आप सभी को आज के जो हमारे बहुत जो खास जो हमारे गेस्ट हैं, मैं आपको उन सभी से मैं आज आप उन सभी को मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी कि कौन कौन से आज हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो आज आपके साथ में आकर बात करेंगे वो हमारे रीजनल मार्केटिंग मैनेजर फॉर वेस्ट इज श्यामल शाह, जो आज आप सबसे आकर आज वो बात करेंगे यहाँ पे इस वर्चुअल स्टेज पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से हमारे साथ में गेस्ट है। तो हमारे साथ में बहुत ही यंग एंड डायनामिक आज हमारे साथ में शख्स आज यहाँ पे माधव दुबे जुड़े हुए हैं ऑल ओवर, यानी अगर देखें तो मुंबई से ये पूरी तरीके से आज हमारे साथ में यहाँ पर आकर जुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कौन है। तो नेक्स्ट हमारे साथ में है चिरंजीव राठौर, डॉक्टर चिरंजीव राठौर, जो कि गुजरात से है, बिलोंग करते हैं, और वो भी आज यहाँ पर आए हैं एंड आज वो अपनी कुछ विचार आज हमारे साथ में वो व्यक्त करेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जलगांव से हमारी तनन्या पाटिल, है ना, वो भी आज हमारे साथ में जुड़ी हुई है, वो आज हमारे इस पैनलिस्ट में आज वो यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग अनुराधा पाटिल फ्रॉम पुणे। सो आज के हमारे ये खास आज हमारे साथ में जो हमारे जो ये गेस्ट है वो आज यहाँ पर हैं, है ना। सो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं आपकी जोरदार तालियों से इस वर्चुअल स्टेज पर मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी हमारे रीजनल मार्केटिंग मैनेजर श्यामल शाह को, जो कि आज के इस इवेंट के बारे में
आपके साथ में बात करेंगे। तो ओवर टू यू श्यामल। Thank you so much, Ali. Can you just please confirm if you're able to hear me? यस श्यामल, लाउड एंड क्लियर। Okay, great, fantastic. So सबसे पहले मैं सभी हमारे जो आज के व्यूअर्स हैं उन सभी को इस स्टेज पे वेलकम करना चाहूंगी. It is really exciting to see that we just join in and we have thousands plus people. Those are already waiting for this particular event, and it's a very special day I would like to talk about. So आज का ये जो दिन है वो basically World Youth Skill Day है. इसे क्यों मनाया जाता है या कब से मनाया जाता है, कौन से दिन पे मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 15 जुलाई. हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड स्किल डे इसे मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब. ये बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसमें काफी कंट्रीब्यूशन होता है ये इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए कि कितना एसेंशियल है स्किल एनहांसमेंट, और क्यों स्किल एनहांसमेंट जरूरी है यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो चॉइस है वो बना सकते हैं अपने काम के बारे में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अपने फ्यूचर्स के बारे में. सो ये दिन जो है उसे सेलिब्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है. ये एक दिन है जिसमें स्ट्रेटेजिकली ये प्लेस किया जाता है कि यूथ जो है उन्हें अपने स्किल्स पे किस तरह से ध्यान देना है या कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं. बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूथ को समझने के लिए कि कौन सा प्ले है, अपॉर्चुनिटीज है, कौन से वो स्किल्स है जिसके ऊपर मैंने ध्यान देना चाहिए ताकि मैं मेरा एक बेहतर फ्यूचर जो है वो डिस्प्ले कर सकता हूँ. यूथ स्किल डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि एक डायलॉग बन सके यूथ के साथ. एक यूथ जो है वो अपना डायलॉग बना सके टेक्निकल, वोकेशनल, एजुकेशनल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, फर्म्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ और बिजनेस टाइकॉन्स के साथ. सो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी देता है पार्टिसिपेंट्स को अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज जो है उन्हें जो है सिग्निफिकेंटली समझने के लिए भी, ताकि वो अपने आप के लिए एक बहुत ही अच्छी जर्नी जो है और एक सस्टेनेबल जर्नी जो है वो यहाँ से जो है अपने लिए पिक जो है वो कर सकते हैं. सो दोस्तों, जैसे हम यूथ की बात कर रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन या ग्लोबल भी अगर हम देखेंगे तो द मैक्सिमम पॉपुलेशन विच इज देयर इन द यूथ. सो U35 में ये होता है. और अगर हम यूथ की बात करें तो दुर्भाग्य मतलब अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी ये फैक्ट है. अपना हमारा जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि वो यूथ को स्किल अप करे और यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया है वो दे सके. बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी हैव मोर देन 300 million, half of the population of U35 who is still struggling to get a secure job. अभी भी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है in this world, or especially in our country, where people are trying to skill up, where people are trying to give opportunities, but still the fact of matter is कि अभी भी बहुत ही मुश्किल है इस यूथ को वो एक सिक्योर जॉब जो है वो पाना, या कोई जो है एक सिक्योर इनकम जो है वो शुरू करना. दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानकारी बताना चाहूंगी. एक रीसेंट सर्वे किया गया था, उसमें ये बताया गया था, या उसमें हम बात कर रहे थे कि कितना मुश्किल है एक सिक्योर इनकम पाना इंडिया में. सो नियर उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें एक ये बात थी कि नियर 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन ने अप्लाई किया हुआ था एक वैकेंसी के लिए, और वो वैकेंसी थी एक स्टेट ओन बैंक में. और उस वैकेंसी की जो मैं कहना चाहूंगी कि द पोजीशंस व्हिच वर ओपन वर जस्ट 1500. सो 1500 वैकेंसीज के लिए 1.5 मिलियन यूथ ने अप्लाई किया था. 9 से भी ज्यादा मिलियंस जो है उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दी थी, और पोस्ट कितने थे? 10,000 पोस्ट थे, और ये रेलवे में थी. और दोस्तों, 19,000 से भी ज्यादा यूथ ने अप्लाई किया था, और जॉब ओपनिंग थी 114, और वो थी म्युनिसिपल स्ट्रीट स्वीपर्स की. So unfortunately, when we have a lot of youth, but people are not able to get this opportunity, today we will take this opportunity to have a look at what are the opportunities. So आज हम इस दिन जो बात करने वाले हैं, so आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से youth के लिए, and we always want to contribute and give back to our
our community. So hum kis tarah se as an Amway, as an organization, we have always helped and nurtured entrepreneurs and helped get people an opportunity, a equal play. तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो यूथ को क्या अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग में, किस तरह से एमवे इंडिया जो है वो यूथ को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उनकी स्किल्स बिल्ड करने में, उनकी एबिलिटीज जो है वो बिल्ड करने में, ताकि हम जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हमारे कंट्री में डेवलप कर पाए। सो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं आज डायरेक्ट सेलिंग की, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने एक्चुअली यूथ को, मैं कहूंगी यूथ ही नहीं बल्कि सभी को, इफ यू सी, दिस इज द only industry which has been able to make sure that they still have kept their place during the pandemic as well. This is the only place which has given an opportunity, या फिर यहाँ पे काफी सारा राइज हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट को। अगर हम देखेंगे तो यही एक इंडस्ट्री है जिसने एक्चुअली यूथ को बचाने में मदद की है इस डिफिकल्ट टाइम्स में, बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट सेलिंग ने। या फिर मैं कहना चाहूंगी स्पेशली अगर हम एमवे की बात करें तो एमवे हैज विटनेस अ ट्रिमेंडस growth and in terms of business opportunity for people, especially for the youth 35. So we have seen a lot of people getting engaged with Amway. और Amway की अगर हम बात करें, Amway India की अगर हम बात करें, we have seen a tremendous interest in this business module, especially from the people those who are under 35. Under 35 जो कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से Amway India बिजनेस को जो है रिस्पॉन्स जो है या इंटरेस्ट जो है वो दिखाया हुआ है। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि स्पेशली वो लोग जो शायद फ्लेक्सिबल जॉब्स या फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे थे, गिग अपॉर्चुनिटी या गिग इकोनॉमिक इकोसिस्टम जिन्हें ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ये जो लोग हैं वो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो काफी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं स्पेशली इन एमवे बिजनेस। और यहाँ पे तो मैं फिगर्स और फैक्ट्स के साथ कहना चाहूंगी, वी हैव 64% of new registrations under U35 category, and hence we are seeing that there's a huge opportunity for the youth, and youth is actually really getting influence and really getting into this business, and they look at this business as a great business opportunity, especially with the change अगर हम देखेंगे तो since after मतलब जब से ये पैंडेमिक हुआ है, जिस तरह से the new normal has started, so we have seen there is a big shift from offline to online sales. And when there is a big shift from offline to online sales, and the consumer is becoming more comfortable on the online platforms for purchasing or for engagements, so I think this gives a very बिग अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही एक अच्छा और बड़ा अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, बिकॉज अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ का खुद का जो प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, उनकी कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग दीज ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स इज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे आर वेरी यूथ की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही आसानी से इसे अडेप्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वे आसानी से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉगल कर सकते हैं, और इसीलिए यूथ को ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और यूथ जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से इस बिजनेस में फास्ट जो है वो ग्रो सकते हैं। एंड अगेन फैक्ट ऑफ मैटर ये भी है, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग की एक ऐसी इंडस्ट्री है, या एमवे की मैं स्पेशली बात करूंगी, सो वी हैव बीन लार्जली अनअफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक में वी आर नॉट बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज ऑल आउटर सिचुएशंस हैव नॉट impacted our business. That actually shows कि अगर कोई ऐसा है जो ढूंढ रहा है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप आपका खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक स्टडी इनकम अगर आप चाहते हैं, और स्पेशली entrepreneur, I think everyone likes to become an entrepreneur, but when it comes then always there are few things which come in our mind. हमारे दिमाग में काफी बार आता है हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर तो बनना है, बट शायद मेरी फैमिली में कभी किसी ने किया नहीं है, तो एक डर जो है महसूस होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, वो होता है स्किल की वजह से या बैकग्राउंड की वजह से, और सबसे बड़ा बैरियर होता है अबाउट योर investments. But I think when it is a business which is like Amway, it actually is helping, it's actually helping to give a better landscape to this youth
for giving them a better employment or a business opportunity, जहाँ पे लोग work from home opportunities, flexible working hours की कोशिश कर रहे हैं, और अगर लोग सच में जो है खुद का बिजनेस चाहते हैं और ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसमें वो जो है अर्ली स्टेज में रिटर्न्स पा सके और जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, और साथ ही साथ गाइडिंग हो, साथ ही साथ आपको स्किल बिल्ड करने में, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी जर्नी में आपकी मेंटरशिप हो, आपको सपोर्ट मिले, अगर ऐसा कोई बिजनेस कोई चाहता है तो दोस्तों आई थिंक मुझे अब और बोलने की जरूरत नहीं है, which is the best option which can और कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो एमवे की अगर मैं बात करूं, स्पेशली एमवे इंडिया की अगर मैं बात करूं, so Amway India has always played a very important role in developing the entrepreneurship in India. India में जो entrepreneurship है उसे drive करने में या उसे develop करने में Amway ने बहुत ही अच्छी तरह से important role play किया है। Skill development has been a major driving focus. Our CEO Anshu Vijaja sir always keeps on saying that skill development is something which we look forward to do it, and skill development is something which will always help you to have a economic growth. So investing in empowering our direct sellers has always been our mantra. So हमने हमेशा हमारे जो direct sellers हैं उनका skill empower करने में, knowledge empower करने में और उनके business में उन्हें exceed करने में जो crucial और important skills हैं, जो tools हैं उन्हें वो enable करने में हमने हमेशा कोशिश की हुई है, and we have always supported and helped, and Amway has always contributed towards skill development and nurturing the entrepreneurship within our country, and focusing on training strategies, enhancing skill, competency building of youth Amway direct sellers. I think these are all the best things which Amway is doing, and today on this Youth Skill Day, I've taken this opportunity to क्लास प्रोडक्ट्स जो है उसकी एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिन्हें बहुत हाई इंस्पिरेशन है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, जिसमें आपको शायद लो या नो इनकम इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए जो स्पिरिट में हाई है, पैशन में हाई है, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऐसा बिजनेस है जो आपको बेसिकली आपका पैशन जो है वो ड्राइव करने की अपॉर्चुनिटी देता है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, वेलनेस और ब्यूटी में होने की वजह से एम्बी जो है वो सभी यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आपके पैशन को प्रॉफिट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रहा मेरी तरफ से, मैंने काफी सारी आपको जानकारी दे दी है आज किस तरह से हम एम्वे इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं और कैसे ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे यूथ के लिए। बट इससे ज्यादा मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं आज यहाँ पे सुनना चाहूंगी उन यूथ से जिन्होंने एक्चुअली इसे एक्सपीरियंस कहा है। सो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे जो होस्ट है उन्हें ये जो प्लेटफॉर्म है वो दोबारा देना चाहूंगी, ताकि वो हमारे जो न्यू फेसेस है, हमारी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपने करियर में भी सक्सेसफुल है, साथ ही साथ एक बिजनेस का उनमें स्पिरिट था, बिजनेस उन्हें करना था, उन्होंने ये बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, उनसे जो है हम जानना चाहेंगे किस तरह से Amway has been contributing them, how is this opportunity, and what is their message for the youth today. So that's it from my end. So I would now like to give it back to the host. Thank you. Thank you so much, Shamal. That was amazing. I think आपने बहुत खूबसूरती से ये सारी चीजों को एक धागे में पिरोया है कि क्यों आज के सिचुएशंस, आज के यूथ के रिक्वायरमेंट्स, स्किल्स और खासकर आज का जो दिन है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं कि एमवे बिजनेस कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड इन योर करियर। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रीजनल मार्केटिंग मैनेजर शामल शाह, जिनको अभी अभी आपने सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो माय फ्रेंड शर्ली एंड शामल आर आल्सो वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम आवर यंग लीडर्स। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आप सभी के समीप इनवाइट करना चाहूंगा हमारी पहली स्पीकर, जिनका नाम है आराधना पाटिल जी, जो हमारे साथ में पुणे से जुड़ रही हैं। आराधना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑन द कॉल, एंड कैन वी हैव आराधना जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। Aradhana ji, first of all, wishing you all a very happy World Youth Skills Day and welcome to this call. मेरा आपसे एक सवाल है और let me just see if we can have her on the call, please. Aradhana ji, can you please turn on your camera?
Let me just check. I think, yeah. I'll just add her. Okay, great. Good to see you. You're there on the screen. Okay, so first of all, welcome. आपका स्वागत है यहाँ पे हमारे वेस्ट मार्केटिंग टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ. मेरा आपसे सवाल जो है वो 2 हिस्सों में बटा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ यूथ और खासकर एक ऐसी यंग जनरेशन, उसके साथ में आपने वर्ल्ड ट्रैवल किया है, उस इन सब के बावजूद वो कौन सी चीज थी जिसने आपको एमवे बिजनेस की तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया? ये पहला. और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि एमवे बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वो कौन से स्किल्स थे, वो कौन सी क्वालिटीज थी जो आपके पर्सनालिटी में डेवलप हुई बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस, जो आज आपको आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में मदद कर रही है. सो ओवर टू यू मैम. थैंक यू वेरी मच. सो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी, जैसे मयूर ने ऑलरेडी बताया है, मेरा नाम आराधना है और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर एंड एन MBA फ्रॉम जर्मनी. एंड थोड़ा अगर मेरे बारे में बताऊँ तो एमवे मैं बहुत मतलब बचपन से ही एमवे मेरे साथ है, बट पिछले 10 मंथ से आई एम डूइंग इट सीरियसली. और जो चेंजेस मुझ में आए हैं बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस, दे आर ट्रेमेंडस. एमवे की वजह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आता है हमें, वो बहुत मुझे मतलब इट हैज बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस ओवरऑल. फिर एक नजरिया होता है चीजों को देखने का, वो भी मेरा बदल चुका है. आई हैव गॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग. देन जो पर्सनालिटी डेवलप होती है हमारी, वो भी बहुत ही अलग ही होती है, क्योंकि जो एक एनवायरनमेंट पूरा एक एमवे जो देता है हमें, वो बहुत अलग होता है, वो और किसी बिजनेस में नहीं मिलता हमें. तो ये जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, सबकी मेरी हुई है. आई एम वेरी मच बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट. तो मैं बाहर बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ. आई ट्रैवल सो मेनी कंट्रीज, बट ये सब से भी वी लर्न अ लॉट. बट इन दिस बिजनेस ऑल्सो देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी पर्क्स दैट यू गेट अलॉन्ग विथ डूइंग द बिजनेस, एंड वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं. बीइंग अ यंग मदर, मेरी छोटी बेटी है, शी इज 3 years old एंड आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस अलॉन्ग विथ हर. हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है एंड आई लुक आफ्टर द मार्केटिंग ओवर देयर. और ये सब करते हुए आई डू एमवे बिजनेस, आई एम बिल्डिंग इट सीरियसली. एंड ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो मुझे मिल रही है वो सिर्फ एमवे की वजह से मिल रही है. आई डोंट थिंक एनी अदर बिजनेस वुड हैव गिवन इट टू मी. और व्हाट एमवे बिजनेस आई लाइक अबाउट इट इज, ये जो बिजनेस है, इट गिव्स विंग्स टू द टैलेंट ऑफ सो मेनी यंग women or so many women out there. And I thank Amway for giving me this opportunity so that I can tap those women who are really hungry. I can tap all those people who are really hungry for it. Yes, so these are all the things which I feel that have benefited me. Thank you, and back to the host. यस, थैंक यू सो मच आराधना. एंड आराधना ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि लास्ट 10 मंथ से वो काफी समय से एमवे बिजनेस को देख रहे थे, लेकिन लास्ट 10 मंथ से अगर वो बात करें तो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से एमवे बिजनेस को उन्होंने बहुत क्लोजली उन्होंने महसूस किया है. एंड वो सच में उनको पूरे अंदर से उनको चेंज करने में एमवे बिजनेस का एक बहुत बड़ा उनको एक योगदान मिला है. तो थैंक यू सो मच आराधना फॉर शेयरिंग दैट व्यू. अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. पुणे से अब हम लोग चलते हैं मुंबई के तरफ में, और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी माधव दुबे को ऑन दिस वर्चुअल स्टेज. सो यस मैम, थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम माधव दुबे है और बाय एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन किया है फिनेंस में और LLB अपनी की है. और आज के समय में इस बिजनेस को मैं अपना फुल टाइम एज एन करियर बना के बिल्ड करूँ, राइट. और बात करो अगर मेरे को इस बिजनेस में मुझे क्या अट्रैक्ट किया, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं मैं इसी बिजनेस के साथ में बड़ा हुआ हूँ, इसी एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ हूँ. मैंने अपने फैमिली में इस बिजनेस को बढ़ते हुए देखा है. तो ये सब होते इस दौरान ना मेरे दिमाग में ये बिजनेस बहुत बड़ी जगह बनाया जा रहा था. और जब मैंने अपना ग्रेजुएशन, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, उस टाइम पे 2 ऑप्शंस थे कि मैं अपना करियर एमवे बिजनेस में स्टार्ट करूं या कुछ और करूं जो मतलब शायद एमवे बिजनेस से अलग हो, मे भी शायद कोई जॉब हो या कुछ और हो. और कहीं ना कहीं कुछ फियर फैक्टर था कि एमवे बिजनेस स्टार्ट मुझसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा. इस किस्म के फियर फैक्टर के साथ में मैंने सबसे पहले अपनी जॉब करियर को चुना, कॉर्पोरेट के साथ में जुड़ा और करीब 2.5 से 3 साल मैंने अपने कॉर्पोरेट्स में काम किया. और
उसमें मैंने मोर देन 5 से 6 कंपनियां स्विच की हैं। उसका रीजन एक ही था कि मुझे किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे मैंने खुद का स्टार्टअप भी किया उस दौरान, जिसमें मैं बहुत अच्छे से फेल हुआ। तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं ये था कि मैं सेटिस्फेक्शन जो मैं ढूंढ रहा था, कि मैं लाइफ में जो चाहता था, वो मुझे किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल पा रहा था। उसका रीजन ये था कि जब आप इस बिजनेस को समझ जाते हो, जब आप इस बिजनेस को पकड़ पाते हो, आपको लगता है कि हाँ, ये बिजनेस किस तरीके से काम करता है, और उस दौरान जब आप इस बिजनेस को इग्नोर करते हो या नहीं काम कर पाते हो, तो ये आपके दिमाग में एक बोलते हैं ना, एक बैकग्राउंड में एक म्यूजिक जैसा बजने लग जाता है कि यार ये बिजनेस बहुत बड़ा बढ़िया है, ये बिजनेस बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ये बिजनेस मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। कब होता है? जब आप इस बिजनेस को समझने लगते हो। तो ये मेरे साथ में चल रहा था। और कुछ समय पहले, अभी से कुछ समय पहले, लगभग 1.5 से 2 साल पहले, मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और इस बिजनेस को एज एन करियर अपॉर्चुनिटी चुना। एक ही चीज मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रही थी इस बिजनेस में, वो चीज जो मैं बहुत पहले से जानता था, राइट? वो है हमारे बिजनेस के फंडामेंटल्स। एमवे बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है? वो फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड। ये चीज मैं 2005 में जान गया था कि ये फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड ये एमवे बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं। लेकिन ये समझने में मुझे काफी 15 साल लग गए। और उसके बाद में जब ये समझ में आई कि हाँ, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड ये किस तरीके से आपके लाइफ में वैल्यूज क्रिएट करते हैं, उस दौरान के बाद से मैं इस बिजनेस को अपने एज एन करियर बना के बिल्ड करने लगा। मैं आज सारे यूथ से एक ही बात कहना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस ऑब्वियसली एक पार्ट टाइम बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत, अगर आप यूथ हैं और आप इस बिजनेस, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, ये आज के समय में एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी लाइफ को 180 डिग्री से चेंज कर सकते हो, राइट? स्किल्स की बात करूं तो बहुत सारे स्किल्स, मतलब ये बिजनेस इतना बड़ा ओशन जैसा है कि आप इससे जितना सीखें उतना कम है, राइट? आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में काम बात कर पा रहा हूँ। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये आज हम एमवे के दौरान सीखे। सबसे बड़ी बात, स्किल्स के पहले भी अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है एंटरप्रेन्योर बनने की। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ये अगर आप इसको लाइटली लेना चाहे, आप लाइटली ले लीजिए, लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहूंगा, एंटरप्रेन्योर बनने की अपॉर्चुनिटी आज के समय में ये बहुत कम जगह मिल रही है। और आज का यूथ क्या चाह रहा है? खुद का कुछ स्टार्टअप करना, और ये अपॉर्चुनिटी आपको वही तो दे रही है। हम लोग जो ढूंढ रहे हैं, आज आप जितने भी लोग एजुकेशन पीरियड में होते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में आता है नहीं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग रियलिटी में आते हैं तो पता चलता है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना इतना इजी नहीं हो पाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी, एमवे अपॉर्चुनिटी आपको सेम चीज तो दे रही है, सेम प्लेटफॉर्म तो दे रहा है कि आप यहाँ पे अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं यहाँ पे। ये फीलिंग आने के बाद, ये अपॉर्चुनिटी आने के बाद, स्किल्स, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, और यहाँ पे एमवे इतना सपोर्ट करता है आपको आपकी स्किल्स डेवलप करने में, आपके कम्युनिकेशन स्किल पे। आप, बिकॉज हम लोग जिस बिजनेस में, हमारे यहाँ पे बातचीत करना ही हमारा सबसे बड़ा बिजनेस, राइट? तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आज एमवे के थ्रू हमें मिल पाते हैं, हमें एमवे की ट्रेनिंग्स के थ्रू मिल पाते हैं। सेलिंग स्किल्स, ट्रेनिंग्स हमारी इतनी सारी चलती हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो ये सारी चीजें हम लोग जो रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं अपने लोगों के साथ में, एक टीम को लीड कर पा रहे हैं। बिकॉज आप इस बिजनेस में अगर आ रहे हो तो आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना पड़ेगा, और वो कौन सिखा रहा है? आपको एमवे सिखा रही है वो चीज। तो इतना सारा पैसा हम लोग कहीं और खर्च करने वाले हैं ये सारी चीजें सीखने के लिए, ये आपको एमवे एक पैकेज में दे रही है। आप जस्ट इस बिजनेस को स्टार्ट करके अपनी लाइफ में एक, बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। सो आई थिंक विद दिस आई एम डन, सो ओवर टू होस्ट। Wow, superb. I just love the passion, Madhav has shown. जो passion है, जो energy है, freedom, family, hope and reward. But ये तो, these are of course the foundations of fundamentals. But मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी माधव जी, आपने जो कहा, उसमें ये था कि कई बार क्या होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के चक्कर में हम अपने आप को नौकरी के जाल में बांध लेते हैं। और हम कई बार, जैसे आपने कहा कि इन 2 years आई स्विच्ड फ्रॉम 3 to 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार 3 महीने में जॉब बदला, बिकॉज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि यार इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसको ना करते हुए मैं ये क्या कर रहा हूँ। सो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग, एंड दैट विल हेल्प अदर्स आल्सो to get motivation and do something considerable in their life. थैंक यू सो मच माधव जी। अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं यहाँ से, हम पुणे से मुंबई और मुंबई से अब गुजरात चलते हैं, और अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चिरंजीव राठौड़ जी। डॉक्टर चिरंजीव राठौड़ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आपका स्वागत है। और मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, इट इज द सेम क्वेश्चन, बट अगेन आई एम श्योर कि आपका एक्सपीरियंस अलग है, कि आपको किस चीज ने आकर्षित किया एमवे बिजनेस की तरफ, पहली बात। और दूसरा, वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर डेवलप हुई हैं बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस। ओवर टू यू। ओके,
आवाज आ रही है? परफेक्ट। जी थोड़ी सी कम है बट आई थिंक दैट्स ओके। ओके ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच मयूर जी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सभी से बात करने की और यूथ से स्पेशली बात करने की। राइट, थैंक्स टू एमबे। जो आज का जो क्वेश्चन है आपका कि मुझे क्या अट्रैक्ट किया, राइट, मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बहुत ही अच्छे फैमिली से, मतलब मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, साथ ही साथ पैशनेटली वो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। फाउंडर्स प्लेटिनम में इस लीडर में नरेश भाई एंड पल्लवी भाई, राइट, और उन्हीं का सन मतलब बेसिकली सेकंड जनरेशन लीडर हूँ इस बिजनेस में। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे घर में ही था, पर मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा, राइट। बाय प्रोफेशन में एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, और अभी फिलहाल एमडी किया, एमडी मेरा खत्म होने को है, और साथ में मेरा गवर्नमेंट जॉब भी है। मतलब गवर्नमेंट में एज अ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में क्लास 2 ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। मतलब जॉब सिक्योरिटी है जो हर एक यूथ को चाहिए, राइट। जॉब सिक्योरिटी होने के बावजूद में इस बिजनेस को क्यों मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्या चीज मुझे लगा जो इस बिजनेस मुझे दे सकता है, राइट। तो मेरा कुछ मैं स्टोरी में जा रहा हूँ अभी कि मेरा फैमिली पहले से ही बिजनेस से जुड़ा हुआ था, तो मैंने काफी सारे लीडर्स को अपने घर आते हुए देखा है। घर पे लोगों को, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को आते हुए देखा है जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल करियर में सक्सेसफुल है। उन लोगों को मैंने काफी नजदीक से जाना है, पहचाना है, मिला हूँ उनसे अपने पेरेंट्स की वजह से, राइट। तो उन सभी से मिला हूँ। वो लोग बिलोंग कर रहे थे काफी सारे अलग अलग करियर से। कोई कलेक्टर थे, कोई बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, कोई आईआईटी ग्रेजुएट थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। बहुत लोअर प्रोफाइल से भी लोग सक्सेस होकर इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़े। तो बेसिकली मैंने हर प्रोफाइल के व्यक्ति को इस बिजनेस में सक्सेस होते हुए देखा, तो मुझे सक्सेस होने में कोई डाउट नहीं था, राइट। हर प्रोफाइल का व्यक्ति इस बिजनेस में है। बहुत सारे लोगों को देखा, और मैं खास करके मैं बात करूंगा हमारे मेंटर प्रवीण सर, मीनाक्षी मैम, राइट। मैं चाहूंगा आप सभी उनके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए जहां भी है। तो प्रवीण सर और मीनाक्षी मैम जो है, वो प्रवीण सर मेरे पापा के बचपन के दोस्त है, तो उनकी लाइफ को चेंज होते हुए मैंने बहुत करीब से देखा है। पहले से जब से मैं बचपन में जब से देखता था, तब से बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैंने उनकी लाइफ में नजदीक से ऑब्जर्व किए, राइट। वो जो लाइफ अभी जी रहे वही तो लाइफ में जीना चाहता हूँ। तो फिर, और मैंने ये भी देखा जॉब में एंटर होने के बाद कि मैं जहाँ पे हूँ अभी, वो अपॉर्चुनिटी मुझे वो लाइफ नहीं दे सकता। ये बहुत सीधी बात मेरे को समझ में आ गई, राइट, कि जॉब एक बिजनेसमैन का लाइफस्टाइल मैच नहीं कर पाता। तो मैंने ऑब्वियसली इस बिजनेस को अट्रैक्ट किया, और काफी सारे लोगों को देखने के बाद, समझने के बाद, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक और भी मेरा पर्सनल रीजन है कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम एज अ लोगों को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल, ना कि हम सेल्फ सेंट्रिक रहे, राइट। मेरे आसपास के मैं लोगों को देखता हूँ तो काफी सेल्फ सेंट्रिक रहता है कि अपनी जॉब, अपना घर, अपना, यहाँ पर हम पूरे आसपास के सभी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस से इस बिजनेस में आगे बढ़ने का मैंने एक सीरियस डिसीजन लिया, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो अभी मुझे बिजनेस एक्सपीरियंस पर्सनली उतना नहीं है, पर जो भी मैं अपने फैमिली से और अपने अपलाइन से सीखा हूँ, मैं अभी ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ। तो इस बिजनेस में जो मैं सीखा उसमें ये जाना है कि एक अगर एंटरप्रेन्योर कोई यूथ है तो उसको बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, एक फाइनेंशियल और एक मेंटल का। तो वो दोनों प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल कुछ कोई इसके बैरियर नहीं है। यहाँ भी मेंटर भी आपको मिलेंगे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट। स्किल इस बिजनेस में मेरे अपलाइन हमेशा कहते हैं कि रहता है वो वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे भी टाइम पे वो अपने आप को मैनेज करके काम करता है, राइट। तो वही सारे स्किल इसमें चाहिए, और मैं वो डेवलप कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और मैं आज ब्रॉन्ज हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं प्लेटिनम भी होने वाला हूँ, फाउंडर्स भी होने वाला हूँ, एमराल्ड और डायमंड, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपना एक फ्यूचर है, उसको हम देख सकते हैं, ऐसा हमको एक ऑप्शन देता है, राइट। उसके अलावा स्किल्स की अगर बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर्स की बेसिक स्किल रहती है, एक सही एटीट्यूड होना चाहिए, राइट, पीपल स्किल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, उसके अलावा हार्ड वर्किंग और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपना होना चाहिए। तो वो सारी कैपेसिटी मिला के हमको इस बिजनेस में सफल करती है, राइट। वो अभी कुछ है, कुछ मैं डेवलप कर रहा हूँ, और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप को डेवलप करके इस बिजनेस को भी ग्रो कर रहा हूँ। विद दैट, थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच चिरंजीव, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने मतलब बताया कि अपनी बिजनेस, मतलब आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन फिर भी आपने
इस बिजनेस पे आपने क्या देखा और अब आप ये बिजनेस को अब आप बहुत पैशनेटली आप इसको बिल्ड कर रहे हैं ना, और आपके स्किल्स भी बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस के द्वारा आपके डेवलप हो पाए हैं। सो चलिए अब हम लोग गुजरात से चलते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगेन एक यंग, बहुत ही बढ़िया सी हमारे यंग डायनामिक, बिल्कुल बहुत प्यारी सी बिल्कुल बच्ची की तरफ में अब हम उनको बुलाना चाहेंगे, हमारी तनन्या पाटिल को, है ना। तो तनन्या पाटिल की अगर हम बात करें तो जलगांव से बिलोंग करती है तनन्या। सो चलिए तनन्या के लिए भी मेरा वही प्रश्न है जो हम सबसे, बिकॉज आई थिंक सबके लिए उनका आंसर अलग अलग होगा। तो तनन्या, कैन वी हैव तनन्या? यस, या तनन्या, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाई डिड यू चूज एमवे बिजनेस, और एमवे बिजनेस ने ऐसा क्या आपके अंदर में ऐसे कौन से स्किल्स को ऐसे डेवलप किया है जो आप आज यहाँ पर यूथ को आज आप बताना चाहेंगे, हम सबको आज आप बताना चाहेंगे? Okay, sure. So thank you so much, Shirley, first of all, and a very warm good afternoon to everyone. मेरा नाम है तनया पाटिल and I basically belong from Jalgaon. Professionally, I'm an image consultant and a soft skills trainer. So this was my background, and even I'm a Kathak artist. I'm a performing Kathak artist. So regarding question is that see, money is an ultimate motive. You do anything. अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, that is all. But वो पैसा कौन सी पर्पस से आ रहा है और कौन सी मीन्स से आ रहा है, that was one thing. So here in Amway, what I have learned and seen is कि when you serve people, when you help people to live a better life, even you become successful from that. तो वो जो एक खुशी होती है ना कि आपने किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाया है, you know, you have helped them to improve their own lifestyle, तो वो health हो, वो कोई भी sense में हो. So if money is coming from that way, I'll be very happy to do this business in my whole life. And that was the only reason मैंने मेरा जो career था वो भी वही हिसाब से चुना था. So being grown up in this association, it was like blessing. मतलब सच में it is a blessing कि हमें ये business opportunity आज हमारे सामने मिली है. Because opportunities है ही नहीं अभी. When people are passing out, when people are being graduated from the colleges and everything, there are no job opportunities. I have seen my many friends, they are even accepting this job opportunities on a very very less salary or a very less annual packages जो भी उनको मिलते हैं. So यहाँ पे अगर मुझे study करते करते मेरा जो career है वो अच्छे से set करते करते यहाँ पे अच्छी hefty amount में कमा सकती हूँ, तो why not? And even I am like being the best in both of it. If you're working hard, if you're doing everything, if you're imparting skills like आज जिस confidence से मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, that is all because of Amway. जैसे सबने कहा, confidence Amway ने उनको भर भर के दिया है. Because what happened is मेरे career में I had many ups and downs. But when pandemic started, I was like कि मैं क्या करूँ? I had no choice. But when this opportunity came to me, it was in front of my eyes. लेकिन जैसे मैं पहचान नहीं पाई, I thought this wasn't the right time to do it. But then I realized कि कोई right time आएगा नहीं. Is it now or is it never? So I started, and it gave me a lot of confidence. It gave me that relation skill. Even when I talk to people will remember me कि यार हाँ तनया मुझे मिली थी और उसने मुझसे बात की थी. So you know, when you can add that little bit value in their life, it's very amazing. वो feeling ही बहुत अच्छी है. And second thing which attracted me the most was that the life of choices I have always wished for. See, when you're growing up, आप कॉलेज में हो, your parents give you everything. आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप चाहते हो. But when I actually left for my career, मैं घर से थोड़ा सा दूर गई. I lived in Mumbai. Then I realized living on your own or living on a particular amount is not that easy. जब आप calculate करते हो आपके own expenses और आपकी lifestyle है कि जो पैसे में कमाने वाली हूँ, that is really not going to be enough. And you know, आजकल की generation है ना, उनके dreams बहुत बड़े होते हैं. Everyone want branded things and everyone wants ऐसा सब कुछ कि जो बहुत higher level का हो. So when I realized कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे मुझे इतनी इनकम नहीं मिलने वाली है कि मैं वो सारी ड्रीम्स मेरी पूरी कर सकूँ, I realized this is one of the best choice in the sense कि मुझे passive income मिल रहा है, साथ में मेरा career build up हो रहा है, साथ में मैं grow हो रही हूँ. As a person, I'm growing a lot. I am socializing, I'm meeting new people. I have actually got so good mentors from this business. वो इतने मतलब they are like my other mother and father. You know, in other businesses I have never seen कि कोई आपको इतना support करेगा.
you being successful, they will want you to be more successful. ये कोई दूसरे business में मैंने देखा नहीं है. So this were very few things which attracted me towards this, and skills are like unlimited. I learn a new skill from this business each and every day. And one of the most important was like discipline. If you are in discipline, you can do everything. You can manage your multiple businesses at one time. You can manage your tasks, and that's how you go. So that's all from my side, and over to the host. Thank you. Wow, superb energy again, Tanaya, and let me tell you, the passion you have shown is amazing. बिल्कुल सही कहा आपने कि youth today wants जैसे कहते हैं कि हम instant noodle ने हमें थोड़ा सा ये कर दिया है, खराब कर दिया है कि हमें सक्सेस, पैसा, फेम, पब्लिसिटी, एवरीथिंग वी नीड इंस्टेंटली. और इस इंस्टेंट के चक्कर में हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, इवन दो व्हेन यू हैव अ राइट डिसीजन इन फ्रंट ऑफ यू लाइक एन एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो सुपर, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव कवर्ड दिस पॉइंट्स. अब हम चलते हैं. सो दोस्तों, हमने अब तक जो सवाल पूछे हमारे चारों पैनलिस्ट से, ये सवाल सेम था लेकिन एक्सपीरियंसेस सबके अलग थे, इनपुट सबके अलग थे. अब हम इनसे एक एक्सक्लूसिव सवाल पूछना चाहेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन पे फिर से इनवाइट करना चाहूंगा पुणे से आराधना पाटिल जी को. सो वेलकम वंस अगेन आराधना जी, एंड माय क्वेश्चन टू यू दिस टाइम इज कि इंडिया एक यंग कंट्री है. इंडिया को रिकॉग्नाइज वर्ल्ड में किया जाता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज यूथ, राइट? और ऐसे सिचुएशन में जब स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज यूथ, एक सच्चाई ये भी है कि कंपटीशन इतना टफ है. देयर सो मच ऑफ टफ कंपटीशन, देयर सो मच ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन कि एम्प्लॉयमेंट पाना या प्रोफेशन को में सेटल हो पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ऐसी स्थिति में एमवे बिजनेस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे इंडिया की यंग जनरेशन के लिए. सो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस यंग जनरेशन को एमवे बिजनेस में अट्रैक्ट क्या चीजें करती हैं, और आपके हिसाब से वो क्यों आपसे या इस एमवे बिजनेस से आके जुड़ना चाहिए? आपका वॉइस नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली. आई थिंक नो, आई थिंक द ऑडियो इज नॉट कमिंग क्लियरली. कैन यू जस्ट चेक द माइक? एक बार आप माइक चेक कर लें प्लीज. Can you hear me? Now it's better. Yeah, now it's audible. Okay. So thank you. And so youth, if we talk about the youth today, कितने youth है इंडिया में? India, young people के लिए, it is full of young people, it is full of energetic people, India. आज अगर देखा जाए तो 55% लोग जो है वो under 35 एज की कैटेगरी में आते हैं in India. Okay, so there is so much potential right now, firstly for the business. एंड वैसे देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आज के यूथ के लिए इट इज लाइक अ सेवियर टुडे, बिकॉज इतने मोर देन crore ऑफ पीपल ग्रेजुएट एवरी ईयर, एंड वो जब ग्रेजुएट होने के बाद व्हेन दे आर हंटिंग फॉर जॉब्स, देयर आर नो जॉब्स अवेलेबल राइट नाउ. मतलब बहुत कम जॉब्स है अवेलेबल अभी, और जिनके हैं उनके भी अभी जा चुके हैं बहुत लोगों के, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन व्हिच वी आर फेसिंग सिंस लास्ट 1.5 year. तो वो भी जा चुके हैं. पे कट्स है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट टुडेज यूथ इज फेसिंग. बहुत लोगों को खुद का बिजनेस करना करने की इच्छा होती है, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पैसा है, एक्सपर्टीज है, इतनी सारी चीज़ें हैं. So because of all these things, those people cannot go ahead with whatever they want or whatever dreams they want to achieve. तो अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, it has come up like a dark horse in this pandemic. This industry has come up like a dark horse because this industry I feel has remained unaffected due to the corona situation. क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, and they are already so much in debt. और मुझे लगता है ये एक ही इंडस्ट्री है जो अभी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी it is you can make wonders, because मेरा जो बिजनेस है वो पैंडेमिक में ही ग्रो हुआ है. तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव बहुत, ये पैंडेमिक को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए फर्स्टली, नॉट टू गिव रीजंस अबाउट द पैंडेमिक फॉर आवर बिजनेस. एंड फॉर द यूथ ऑल्सो, ये हमारा जो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है एमवे जो देता है वो बहुत अच्छा है. वी द यूथ आर ऑलवेज एक्साइटेड फॉर समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, नॉट द ट्रेडिशनल वन, नॉट द 9 to 5 job that they have. They are always excited for something new which they can get into their lives. And एक
एक लेवल अचीव होने के बाद एक अच्छी इनकम भी आना शुरू हो जाती है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टुडे। और कैसे होता है, बहुत सारे यूथ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा होता है, यू नो, दे रियलाइज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव। बट ऐसे बहुत सारे यूथ होते हैं जिनको एक रियलिटी चेक भी देना पड़ता है कि यू नो व्हाट द कंडीशन इज आउटसाइड, व्हाट योर कंडीशन इज राइट नाउ एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर यू टू गो अहेड इन लाइफ। तो ये भी थोड़ा रियलिटी चेक उनको देना पड़ता है व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू समथिंग who is, you know, who is a youth and who's in search of something, तो वो भी कभी कभी देना पड़ता है। that is also necessary, it is a bit bitter fact but you have to give it to them, you know, अगर उनको realize नहीं हो रहा है अपने आप से तो। और जो फ्लेक्सिबिलिटी ये बिजनेस देता है, मैंने पहले भी बोला है, वर्क फ्रॉम होम, यू नो, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। अभी के सिचुएशन में यू नो हार्डली एनीबडी इज ट्रैवलिंग, सो घर से घर पे बैठे बैठे इतना अच्छा इनकम आपको मिल रहा है। यू आर गेटिंग सो मच ऑफ रिकग्निशन। द यूथ इज रियली हंग्री फॉर रिकग्निशन। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, मनी नेवर मोटिवेटेड मी बट रिकग्निशन डिड। येस, यू नो, बहुत लोगों का होता है अपने आप का जो ईगो होता है वो सेटिस्फाई करना होता है लोगों को कि येस आई एम डूइंग समथिंग, येस I can do something, and you know when they start becoming successful then they get more motivated to do it, you know, कि yes मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। and for women also this is you know this opportunity is such a nice opportunity। आप घर पे बैठ के अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। you can you know get recognition where which women are really hungry for, you know, they can add up to their family expenses, you know, they can contribute to their family expenses, और ये itself a feeling is very good for the women। so ये all the young women also, for them also it is a very good opportunity। और you know ये आज का जो ये इकोनॉमी है, लाइक यू नो शामिल मैम हैड ऑलरेडी सेड, इट्स अ गिग इकोनॉमी, बहुत अप्स एंड डाउन्स है। और ये अप्स एंड डाउन्स में to get a steady source of income or to get something which really you know is going to make profits in the future, that is very important। and I feel right now this direct selling business is giving you that opportunity, Amway is giving you that opportunity, you know, to make something of your own। youth के लिए you know पहली बात तो they are बहुत सारे youth होते हैं, बहुत startup oriented होते हैं, they want to start something of their own, so this business gives them the feeling of ownership that yes they are doing something of their own। क्योंकि बाहर अगर खुद का बिजनेस शुरू करना है तो इट इज नॉट दैट इजी। अगर मैं आज सोचूं कल से मुझे बिजनेस शुरू करना है तो इट इज नॉट दैट इजी। यू हैव टू बिल्ड अप दैट मच मनी, यू हैव टू गेट दैट एक्सपर्टीज फ्रॉम समवेयर, यू हैव टू हायर पीपल, इट इज नॉट दैट इजी। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड एक ट्रेडिशनल बिजनेस का है, एंड यू नो व्हाट, आई नो व्हाट अप्स एंड डाउन्स कम इन अ बिजनेस, यू नो, तो ऐसा भी होता है। तो मुझे आज जो यूथ मुझे यू नो सुन रहे हैं तो उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को you know you really want fun, you want excitement, you want something new, you know, you want that adrenaline rush in you, you know, and this business will give you, you know, when you start building this business seriously, you know, you will enjoy it। and you know I will always say do what you really enjoy, you know, in life, and you know don't fear for failure, because to succeed you have to be right only once। yeah, you have to be right only once, and then it is good to go for you। yeah, thank you, back to the host। थैंक यू सो मच आराधना ने बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज बिल्कुल बताया कि हमें यूथ को डरना नहीं है, हमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स आई थिंक सो यही एक ऐसा बिजनेस है जो किसी को आगे बढ़ रहा है अगर, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। अगर हम देखिए, अगर हमें किसी को ऑफर किया है तो हम ये चाहेंगे कि वो ये बिजनेस में बहुत 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 आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन अभी चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे अभी मयूर ने जो प्रश्न उनसे पूछा था, तो यस ऑफ कोर्स बहुत सारे, एंड उन्होंने वही चीज बताया कि लेकिन एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम सबको बहुत अच्छी तरीके से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। एंड आज का जो यूथ ढूंढ रहा है रिकॉग्निशन, जो वो चाहता है, तो यस ऑफ कोर्स एमवे इज द प्लेटफॉर्म जो डेफिनेटली हमें ये जो हमारी जो इच्छा है, हम जो चाहते हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करने का टाइम हमें देता है। तो थैंक यू सो मच आराधना फॉर आंसरिंग दैट। सो चलिए अब हम जल्दी से, हम पुणे से अब हम फिर से हम लोग वापस चलते हैं मुंबई के तरफ में, और अब हम फिर से इस वर्चुअल स्टेज पे मैं माधव को फिर से मैं इनवाइट करना चाहूंगी। यस मैम। यस माधव, कैन यू जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा? यस, ओके। सो माधव, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपके लिए फर्स्ट की आपने एमवे बिजनेस को क्यों चुना, आपने बहुत बढ़िया तरीके से स्किल्स आप में डेवलप हो गए, लेकिन अगर मैं आपसे भी ये पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा ब्रांड है ना, जो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हैं, और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो
आपके उस कनेक्शन के वजह से आप उसको दूसरे लोगों को या फिर आप जो किसी को अगर आपको बताना है तो आप उसे किस तरीके से आप उसे रिप्लिकेट कर पाते हैं? यस मैम, थैंक यू। ब्रांड की बात कर रहे थे, मतलब तो जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो या इस बिजनेस में एंटर करते हो, आप सबसे पहले ना प्रोडक्ट से प्यार करने लगते हो, यू फेल इन लव विद प्रोडक्ट्स, राइट। और जितने भी ब्रांड है सब के सब बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं, और इससे बेहतर ब्रांड मुझे लगता है हो नहीं सकते। लेकिन अगर मैं अपना कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड सिलेक्ट करूँ कि जो मेरा फेवरेट, तो मैं डेफिनेटली न्यूट्रालाइट को सिलेक्ट करूंगा। उसका रीजन बहुत क्लियर है। एक तो मेरे घर में ये बिजनेस स्टार्ट होने की वजह न्यूट्रालाइट ही था। मेरे घर में सबसे पहले न्यूट्रालाइट आया, उसके बाद में मेरे घर में बिजनेस आया, और मैंने इसमें मेरे डैड की हेल्थ को इम्प्रूव होते हुए देखा बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे फेथ था कि न्यूट्रालाइट एक बहुत बेस्ट ब्रांड है। और मैं अभी अपनी खुद की भी बात करूं, जस्ट इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं अपने घर से दूर रह रहा हूँ। मैं अपना घर यू कैन से लाइक आई लेफ्ट माय होम टू बिल्ड दिस बिजनेस, और डिफरेंट सिटी में शिफ्ट किया हूँ, मैं अकेले रह रहा हूँ। मैं तो न्यूट्रालाइट मुझे भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है कि अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो जब मैं बात करता हूँ कि मैं मेरा न्यूट्रालाइट ब्रांड फेवरेट क्यों, इतना फेवरेट क्यों है, तो मैं न्यूट्रालाइट से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। बिकॉज जब मैं ये न्यूट्रालाइट किसी को बात कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसको कुछ प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ, मैं उसकी एक केयरिंग, मतलब मुझे मेरी तरफ से दिखती है कि मैं एक इमोशंस मेरे केयरिंग के हो जाते हैं कि मैं उस फैमिली की केयर कर रहा हूँ। और मैं अपने टीम में भी यही चीज डुप्लीकेट करने के लिए बार बार कहता हूँ कि न्यूट्रालाइट इज नॉट अ सेलिंग अ प्रोडक्ट, न्यूट्रालाइट इज अ टेकिंग केयर ऑफ अ फैमिली, राइट। सो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोसाइटी की तरफ कि हम हर घर में न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट को पहुंचाएं। बिकॉज आज की जो लोगों की, मतलब अगर हम लोग लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, या अभी ये पिछले 1-1.5 साल में सबको ये बात तो समझ में आ गया कि हेल्थ है तो सब, हेल्थ इज वेल्थ वाला जो फीलिंग है ना, हेल्थ है तो सब बढ़िया है, तो ये वाली फीलिंग सबको आ चुकी है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन लोगों तक एक राइट प्रोडक्ट जाए। बहुत सही बात कर रहा हूँ, मतलब कि राइट प्रोडक्ट पहुंचना। बिकॉज लोग आज हम लोग सबको जो नए नए शब्द लोग सुन रहे हैं, हम लोग कई समय से बात कर रहे हैं, चाहे वो इम्यूनिटी के बारे में बात हो, चाहे वो एंटीऑक्सीडेशन के बारे में बात हो, जितनी भी बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोगों तक एक राइट प्रोडक्ट लेके पहुंचा पाए। और जितने भी मैं यूथ है उन पे कह सकता हूँ, मतलब कि हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एक पैशन है न्यूट्रालाइट की तरफ मेरा, और मैं न्यूट्रालाइट में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। इवन मेरी टीम में भी आज 60% बिजनेस न्यूट्रालाइट से ही आ रहा है, राइट। बिकॉज न्यूट्रालाइट एक ऐसा, मतलब कन्वर्टिंग पैशन इनटू द प्रॉफिट, जैसे शुरुआत में श्यामला मैम ने कहा था। तो ये वही चीज एक तरीके से हम लोग आज जितने जगह पे हम लोग न्यूट्रालाइट पहुंचा के आते हैं, आज कितने सारे कॉल्स दिन में आते हैं, जस्ट वो थैंक यू बोलने के लिए वो कॉल्स करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट्स हमको सजेस्ट किए थे और उसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ में इतना इंप्रूवमेंट आया। तो एक ब्लेस्ड वाली फीलिंग आती है, मतलब नहीं हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। शायद ये चीज कहीं और सारे ब्रांड्स में, मतलब बहुत सारे लोग मतलब दूसरे दूसरे ब्रांड्स में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो फीलिंग मुझे आ रही है जो न्यूट्रालाइट बेचने पे आती है, शायद मुझे दूसरा कोई ब्रांड से इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आज मैं कई सारे मतलब रूरल एरियाज में जाता हूँ, तो मैं वहां पे कई सारे ओल्ड एज ग्रुप्स को देखता हूँ, तो वो लोग जिस तरीके से उनकी तरफ से जो ग्रेटिट्यूड में फील कर पाता हूँ, टोटली डिफरेंट। मतलब मैं उसको पैसों से कभी खरीद नहीं सकता था, ऐसी चीज थी वो। तो न्यूट्रालाइट ऑब्वियसली मेरा फेवरेट ब्रांड है, मेरी पूरी टीम का फेवरेट ब्रांड है ये, और पूरी की पूरी हम लोग टीम इसी में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। बिकॉज ये एक कहीं ना कहीं आज हम सब जानते हैं ना, बिकॉज आज हम लोग जो भी खाना खा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेट भरने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे न्यूट्रिशन कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग देख रहे हैं, मैं इवन कई सारे फार्मर्स के साथ भी इन्वॉल्व हुए, तो वो लोग खुद कहते हैं कि सर हम लोग अपने फील्ड के प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, क्योंकि उनको खुद को डर लगता है, क्योंकि इतने सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये सारी चीजें यूज करके वो हम तक पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग सिर्फ अपना एक पेट भरे, न्यूट्रिशन की तो बात ही नहीं हो रही है। आज जब मैं देखता हूँ इतने छोटे छोटे यंग एज के जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक इमोशनल फीलिंग ज्यादा मेरे को मतलब कनेक्ट हो, मतलब सेंटिमेंट्स जाग जाते हैं कि यार इनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं। और मेरा कहीं ना कहीं यही एक फोकस बन जाता है कि मैं अपनी सारी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकूं, क्योंकि हर घर में एक से मैं ये कोई कह नहीं सकता कि हमारे घर में सभी लोग हेल्दी हैं। हर घर हमारा एक प्रोस्पेक्ट है, हर घर हमारा एक पोटेंशियल यूजर है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम लोग हर घर में पहुंचे, बिकॉज न्यूट्रालाइट आपका डोर ओपनर भी हो सकता है। आज इंसान हो सकता है बिजनेस के लिए एक बार सेकंड थॉट दे, लेकिन हेल्थ को आज प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस बन जाता है कि हम लोग हर घर में न्यूट्रालाइट को लेके जाएं, हर घर की हेल्थ को इंप्रूव करने का एक मिशन बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूट्रालाइट यूज करवाएं, राइट। सो थैंक यू। Over to Shirley ma'am. Yeah, thank you so much, Madhav ji. I think that was really awesome. You have done a, एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी
कि पैशन की जब बात आती है तो जब पैशन आता है ना तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिख जाता है दैट हाउ पैशनेट यू आर अबाउट न्यूट्रीलाइट। चाहे रूरल एरियाज में न्यूट्रीलाइट को लेकर जाना हो या अपने लाइफ में न्यूट्रिशन की बात करना। और मैं यही कहता हूँ कई बार, शर्ली, मैं, शामिल, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है एमबी बिजनेस जहां आपको पैशंस को ड्राइव करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो थैंक यू सो मच माधव फॉर शेयरिंग दैट अमेजिंग इनसाइट विद अस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू, अगेन हम लोग अहमदाबाद चलेंगे और वहां पे डॉक्टर चिरंजीव जी से हम बात करेंगे। सो लेट्स ट्राई एंड ऐड हिम ऑन द स्क्रीन। चिरंजीव जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ डॉक्टर इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड कि यार हमारा इंटरेस्ट कई बार न्यूट्रिशन में होता है, और आपका इंटरेस्ट मैं जानता हूँ न्यूट्रिशन में हमेशा से रहा है, सप्लीमेंट्स में रहा है। और इस इंटरेस्ट को आप कैसे पैशन में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हो, इस पैशन से कैसे प्रॉफिट्स को ड्राइव कर रहे हो, ये हम जानना चाहेंगे। So over to you, Dr. Chiranjeev ji. Okay, thank you so much, Mayur ji, for a wonderful question. Right, पैशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना जो आजकल यूथ का सबसे बड़ा नीड का कह सकते हैं, या फिर यूथ को सबसे ज्यादा मोटिवेट जो लाइफ लीड करने के लिए जो एक सेंटेंस कह सकते हैं कि पैशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। राइट, मैं पहले मेरे पैशन की बात करूंगा कि मुझे हेल्थ जो है वो मेरा पैशन रहा है। अभी मतलब मैं मेरे अगर पास्ट कॉलेज टाइम की बात करूं तो मैं एज अ फॉर्मर मैं कबड्डी भी नेशनल लेवल खेल चुका हूं। राइट, तो पहले से एक फिटनेस होना वो मेरे बचपन से मुझे था, मतलब साइकिलिंग करना, फिटनेस करना। अभी मैं फिलहाल राइट नाउ मैं करता हूं, है ना, साइकिलिंग करता हूं, रनिंग करता हूं। तो ओके, मैं ये जो फिटनेस है मैं अपने आप को हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपने फिट रहूं। राइट, मैं मेरा जो प्रोफेशन है वेटरनरी प्रोफेशन, तो मुझे बेसिकली इंटरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स के साथ काम करने में। आवाज आ रही है मेरी सलीम मैम? यस, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा जो पैशन है, मैंने जो वेटरनरी प्रोफेशन सिलेक्ट किया है, तो मैं बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के साथ काम करना चाहता हूँ। उसके लिए भी मैं अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा हूँ और काफी सारी बार मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो अगर मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा। राइट, और जो अपना एमबे है वो मेरे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक जबरदस्ती कैटेगरी, न्यूट्रिशन कैटेगरी, उसको एक सपोर्ट करता है। मेरी अगर बात करूं तो मैं बहुत टाइम से सप्लीमेंट और खासकर अपने फाउंडेशन प्रोडक्ट्स जो है डेली ओमेगा प्रोटीन, राइट, उसको मैं काफी टाइम से ले रहा हूँ। तो मैं अपने आप को काफी एनर्जेटिक और स्टेमिना हमेशा महसूस करता हूँ। और उसका ऐसा समय तब होता है जब हम दोस्तों के साथ कहीं ट्रैकिंग पे या एडवेंचर ट्रिप पे जाते हैं या फिर कुछ खेलते हैं हम स्पोर्ट, तब मेरे को लगता है कि नहीं यार, इन लोगों से मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है ना, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स का पावर रहता है। मैं अगर मेरे फैमिली की बात करूं तो मेरे फैमिली में भी न्यूट्रीलाइट के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। हमारा फैमिली जो है उसमें कोई ऐसा बड़ा इलनेस नहीं है कि चलो भाई रोज वो बीपी की गोलियां वगैरह सब वो मुखवास की तरह जैसे वो लेते हैं। राइट, तो वो सारी चीजें नहीं है हमारे घर में, ड्यू टू ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूट्रीलाइट। राइट, तो इन्हीं सारे बेनिफिट्स और जो बेनिफिट्स है उसको हम लोगों तक ले जा रहे हैं, लोगों को यही बेनिफिट्स को शेयर कर रहे हैं और उनके साथ हम ये शेयर करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, है ना। अगर किसी फैमिली में कोई, जैसे वो बता रहे थे कि फैमिली को अगर न्यूट्रीलाइट देके हम केयरिंग का एक फील महसूस कर सकते हैं। राइट, कभी कभी अपने जो अच्छे रिजल्ट न्यूट्रीलाइट के हमको मिलते हैं तो उसका हम सोशल प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट, तो क्या करते हैं कि उनके फीडबैक लेते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरे स्टेटस अपडेट्स वगैरह में मैं कभी कभी डालता हूँ न्यूट्रीलाइट के पोस्ट में, जो कंजप्शन करता हूँ न्यूट्रीलाइट का उसको भी मैं कभी डालता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा एक कस्टमर बेस जनरेट होता है, लोग एक इन्फ्लुएंस या फिर एक पुल महसूस करते हैं कि नहीं हमें लेना चाहिए तो हमारा भी हेल्थ अच्छा रहेगा। राइट, और वो पुल जो महसूस करते हैं उससे मुझे कस्टमर्स भी मिलते हैं, कई सारे नए ज्वाइनिंग भी मिले, मुझे रेगुलर कस्टमर्स भी उसी के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले। तो यही बेसिकली सारी चीजें हैं। व्हाट्सएप के अलावा और सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता, पर व्हाट्सएप के जरिए मुझे काफी सारे बेनिफिट्स हुए, है ना। तो यही चीज है जो मेरा हेल्थ का पैशन है, उसी को पैशन को मैं लोगों के साथ अच्छे से शेयर करके, प्रॉपर वे में शेयर करके और सीख के न्यूट्रिशनल का अभी जो कोर्स अपना एमबीए का रन हो रहा है तो वो भी कर रहा हूँ। राइट,
तो वही सब करके मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ और अपने पैशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच चिरंजीव, थैंक यू। चिरंजीव ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि वो किस तरीके से अपने पैशन को वो कैसे उसको आगे लेके जा रहे हैं, कैसे वो लोगों की हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं कि बीइंग अ डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर है वो, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से न्यूट्रीलाइट के बारे में वो बता रहे हैं, वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे एक बेटर और लाइफ वो कैसे मतलब अगर वो न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर लेते हैं तो वो एक बेटर लाइफ की तरफ में किस तरीके से वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच चिरंजीव फॉर गिविंग दैट वंडरफुल आंसर। अब चलिए अब हम लोग चिरंजीव की तरफ से अब हम फिर से चलेंगे जलगांव तनन्या के तरफ में। सो कैन वी हैव तनन्या? यस, ओके। सो तनन्या, मैं आपसे एक चीज पूछा, जैसे आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि एमवे ने किस तरीके से आपके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प किया है, आपने क्यों एमवे को आप ऐसा बिजनेस में आपने इसको एज अ कैरियर आप इसको देख रहे हैं। सो मैं से ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं जैसे आज का यूथ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड होता है, सो आपके हिसाब से अगर ये बात आती है कि सोशल मीडिया क्या ये एक अच्छा कोई यानी ये एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से हमारी विजिबिलिटी, जैसे अगर हम एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर अगर हम बनना चाहते हैं तो क्या सोशल मीडिया ये एक ऐसा माध्यम है जो हमारी मदद कर सकता है हमारी विजिबिलिटी को, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में? तो आपको क्या लगता है इस बारे में? Okay, thank you so much, Shirley. So, taking forward about social media, अगर हम social media की बात करेंगे और connect करेंगे हमारी generation से, like people in the age of 18 to 30 approximately. तो if we term social media, कुछ लोगों के लिए social media उनकी life रहेगी। मतलब हम imagine नहीं कर सकते कि अगर हमारे life में Facebook, Instagram नहीं रहता तो हमारी life कैसी होती? Because you know some people like देयर आर मेनी पीपल जिनको पर मिनट की अपडेट सोशल मीडिया पे अपलोड करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है जैसे कि इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लाइफ और डेथ। पीपल आर सो एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। सो इफ मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं कोई फोटो अपलोड करती हूँ सोशल मीडिया पे, विद इन अ मिनट यू गेट लाइक हंड्रेड्स ऑफ लाइक लोग इतने एक्टिव कैसे होते हैं सोशल मीडिया पे। बट देन if we tally this thing and if we compare this both things कि अगर सिर्फ आप एक आपकी नॉर्मल लाइफ की पिक्चर सोशल मीडिया पे अपलोड करके आपको एक मिनट पे 1000 लाइक्स, hundreds of likes and 200 of likes मिल रहे हैं, so if you are creating some good content out of it, if you are using your skills, if you are using your knowledge to promote your business, to promote entrepreneurship, to promote your skills, what you have in your hand, so you're getting such a big platform from it. See, you will be always having two choices at any point. अगर आप सोशल मीडिया पे सिर्फ रील और फीड्स और मीम्स देख के स्क्रॉल करके टाइम पास करना चाहते हो, रात रात भर जगना चाहते हो, दैट इज completely your choice. But other than that, you can even create something good, something valuable for your audience out there. You can create something जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी और वो आपके वजह से होगी. So first thing which you need for social media is a personal connect. कि मैं मेरे ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट कर रही हूँ. What Amway provides us with the best of the brands in the world. They have best of wellness, they have best of skincare, they have best of home care, and they have best of everything. But बात यहाँ पे ऐसी आती है कि आप उन ब्रांड्स को प्रेजेंट कैसे करते हो. So आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे आप thousands and millions of people के साथ कनेक्ट कर सकते हो. You can interact with them, you can really talk with them. Today's Zoom, I can talk to you thousands of people at one time. ऐसे मुझे इंस्टाग्राम भी देता है ना ऑप्शन. आई कैन गो लाइव, आई कैन प्रमोट माई सेल्फ, आई कैन प्रमोट माई प्रोडक्ट्स. सो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं सिर्फ मेरी प्रोटीन की स्टोरी सुबह डालती हूँ दैट आई एम हैविंग समथिंग प्रोटीन, कोई शेक बना के मैं वर्कआउट जाके आई एंड आई एम पुटिंग दैट एज अ स्टोरी, देयर विल बी 300s and 400s of people viewing the story in like 5 or 10 minutes. जहां से आपको इतने सारे DMs आते हैं कि what are you this consuming, why are this consuming. So even direct messages sometimes can be a so good point of sell for you. Build a rapport with your audience, build the rapport with your customers, with your from whom you can think yeah, this is like these are the people who actually care about themselves. They actually care about कि मैं मेरे लाइफ में क्या कर रहा हूँ. And for all the youths out here, you know how social media is, you know the reach of the social media, you are so friendly ना. मतलब मैं imagine मतलब compare करती हूँ मेरा Instagram यूज और मेरे पापा के Instagram के यूज के साथ, so it is very different.
आई एम लाइक ठीक स्टोरी डालनी है ना 2 मिनिट मैं अभी डालती हूँ ये स्टोरी एंड इफ ही वांट्स टू पुट अ स्टोरी तन्या मला फोटो काढून देना सॉरी तन्या मेरे को पिक्चर खींच के दे पहले फिर अब ये स्टोरी कैसे डालूं सो नो देयर इज अ डिफरेंस सो अगर आपके पास ये एडवांटेज है सोशल मीडिया का आप इतने फ्रेंडली हो आपके पास नॉलेज है सबसे पहले तो बिकॉज एम्बे प्रोवाइड्स यू विद एवरीथिंग उनके ट्रेनिंग्स अमेजिंग होते हैं उनका जो नॉलेज वो देते हैं दैट इज भर भर के इट इज लाइक even if you're attending something new session you are getting something new and that is for sure so why not showcase it through social media promote yourself promote your own brand it is your own business so just promote it and go through it so that will be a very good platform for everyone I think and even I am developing myself through it so all the best for that and thank you over to the host Thank you so much. Thanks a lot. I think so beautifully explained कि जो उन्होंने कहा वो सही बहुत बहुत बिल्कुल आई थिंक सो आप में से बहुत सारे लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे कि हम चाहें तो हम रील को या फिर हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तरीके से हम देख सकते हैं या फिर हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तरीके से भी हम देख सकते हैं ना सो बहुत अच्छा एंड स्पेशली यूथ की जहां पर बात आती है तो यस ऑफ कोर्स मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली हो गए एंड आई टोटली कनेक्ट विद अनन्या व्हाट शी सेड कि मुझे खुद आज जैसे स्टोरी की अगर बात होती है तो मुझे डिफिकल्टी होती है मेरी बेटी या मेरा बेटा बहुत बिल्कुल इंस्टेंट वो सारी चीजें कर लेते हैं तो यस ऑफ कोर्स तो जब हमारे पास में एडवांटेज है तो क्यों ना हम इस चीज से हम इसको कनेक्ट कर सके ब्यूटीफुल आंसर थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल आंसर तनन्या सो अब हमने हमारे चारों जितने जो हमारे आज यहाँ पे जिन गेस्ट को जो हमने बुलाया था आपने उनका वंडरफुल आपने उनसे एक्सपीरियंस सुना आपने सारी चीजें देखा सो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन सारी चीजें कर दिया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से यहाँ पे वर्चुअल स्टेज पे हमारे रीजनल मार्केटिंग मैनेजर श्यामल शाह को यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी सो ओवर टू यू श्यामल Thank you so much, Shali. Please confirm if you're able to hear me. Yes, loud and clear. Thank you. So Shali, as I was expecting, जिस तरह से मैं सोच रही थी, I think उससे भी कहीं beautifully हमारे जो ये young और dynamic leaders हैं, जो young and dynamic Amway entrepreneurs हैं, उनसे मैंने इतनी सारी चीजें जो है वो सीखी है, समझी है और बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही beautifully से इन्होंने जो है आज ये सभी को हमारे जो सभी viewers हैं उन्हें मदद की है ये समझने के लिए कि किस तरह से एम्वे इस अपॉर्चुनिटी को ये यूथ जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है और बहुत ही बारकाई से छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअली वो जो कर सकते हैं बहुत ही डुएबल चीजें जो है वो उन्होंने आज यहाँ पे हेल्प की हुई है लोगों को समझने के लिए ऑल आई वुड लाइक टू से टू द यूथ इज कि each and everyone who wants to be successful in the life they basically need some guidance they basically need some mentorship they need an opportunity so I think guys we have a world class opportunity with premium brands along with that you get an opportunity to play or have your own startup have your own business and I think the youth really gets inspired everyone wants to have their own business so here is the opportunity where you can have your own business with great brands wellness and beauty is something which is a very I would say focused area passion area of a lot of people so here comes the business opportunity where you can convert your passion into profit and I think it's a fantastic opportunity which we all should take and today on this World Youth Skill Day we have taken this opportunity to help thousands of people understand the strong opportunity which comes with Amway business which is helping Amway is actually helping India to grow entrepreneurs and help the entrepreneurial skills been developed and nurtured in the youth here so that's it from my end thank you so much wish you all the very best and we look forward success for this youth in the upcoming years great thank you so much over to the host thank you yes so thank you so much everyone for joining in and काफी यहाँ पे सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज जो हमारे गेस्ट ने जो बताया आप सभी ने उसे सुना अगर किसी का मिस हुआ है अगर नहीं देख पाए हैं अगर नहीं जॉब की वजह से किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से YouTube पर ये आज रात तक यहाँ पे अवेलेबल है तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फिर से हमारे ये यंग एंड डायनेमिक लीडर्स को अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जाकर YouTube के पर आप जाकर आप इनको फिर से आप उनको सुन सकते हैं सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड
थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन आज यहाँ पे जुड़ने के लिए। और जो भी आज ये हमारे जो यंग यूथ ने जो आज आपको बताया है, प्लीज आप उसको सिर्फ जो उन्होंने जिस तरीके से अपने पैशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, कोशिश करें कि हम भी उसी तरीके से हम इस पैशन को हम लोग आगे लेके जाएं। सो ऑन दिस नोट यहाँ पर हम लोग हमारे सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स अ लॉट। प्लीज स्टे सेफ, प्लीज स्टे हेल्दी।